Hello, my dear and little students. I hope you're fine and fit with your loving ones at your home and you all are doing your homework regularly. So, I am Ruksar ma'am and today I am back with the rest of the unit 2, that is the yellow butterfly. So, welcome to online class. So, today we are going to study the rest of the unit through some activities, okay? So today we are going to start the chapter with the activity 1. So let's see. Here are some sentences about the actions of the some children. Write well done if you like their actions. Write not done if you do not like their actions. Dear students, यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपको दिए गए कुछ बच्चों के बारे में जो वो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. इफ़ यू लाइक देयर एक्शंस, अगर आपको उनके एक्शंस पसंद आते हैं, then you have to mention in that blank well done. if you do not like, अगर आपको पसंद नहीं आते उनके actions तो you have to mention not done in the particular blanks. Okay, so first sentence, Aman has a pet parrot, he always keeps it caged. so अमन के पास एक pet parrot है ग्रीन कलर का. सो वो हमेशा उसे क्या करता है, पिंजरे में रखता है. सो इट्स वेल डन और नॉट डन. आई थिंक इट्स नॉट डन. हमें कभी भी किसी भी बर्ड को या किसी भी एनिमल को केज में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम दिस यूनिट दैट थिंग ओनली. सोनू के हैंड में जब बटरफ्लाई होती है तो बटरफ्लाई सैड होती है, बिकॉज बटरफ्लाई वॉन्ट्स टू बी फ्री, उसे फ्री होना होता है. सो सोनू क्या करता है, उसकी खुशी के लिए उसे फ्री कर देता है अपने हैंड में से. सो फ्रॉम दिस यूनिट वी हैव लर्न दैट we should not cage any animals, any insect, any bird. Okay, so for one number, Aman has a parrot, I will write not done. Okay, so what will you have to write? Not done here, like this. Okay, you can write not done. So second, Sanjana has a feeding corner for birds in the balcony of her house. सो हियर वन गर्ल संजना, उसके घर की जो बालकनी है उसकी बालकनी के कॉर्नर में उन्होंने क्या बनवाया है, एक फीडिंग कॉर्नर बनवाया है बर्ड्स के लिए, जहाँ पर वो एक पोट के अंदर वाटर रखते हैं और समथिंग कुछ खाने के लिए बर्ड्स के लिए वहाँ पर रखते हैं. तो इट्स वेल डन और नॉट डन? आई थिंक इट्स वेल डन. सो यू शुड राइट वेल डन. ओके, now let's see third number. When Daksh went for bird watching, he did not disturb the birds. He watched them from a distance with his binoculars. Now here Daksh जब भी वो बर्ड्स को देखने के लिए जाता है तो he did not disturb the birds, वो बर्ड्स को परेशान नहीं करता उनके पास जाकर. He watched them from a distance, वो बर्ड्स को बहुत दूर से देखता है अपने बाइनोकुलर्स के थ्रू. सो हमें बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है. सो आई थिंक व्हाट विल यू राइट फॉर दक्ष? आई थिंक इट्स well done. I will write well done for Daksh again. Okay, so let's see the fourth one. Now the fourth one is given to you. Alice is afraid of street dogs, so whenever she passes by the street, she throws stones at the dogs. So here what Alice is doing, Alice को डॉग से डर लगता है. ओके, सो एलिस जब भी स्ट्रीट से पास हो रही होती है, वहाँ से घर जा रही होती है उस स्ट्रीट से, तो वो क्या करती है, शी थ्रोज स्टोन्स एट अ डॉग्स, वो डॉग्स के ऊपर स्टोन्स फेंकना शुरू करती है. वी शुड नॉट हैरेस द डॉग्स, हमें डॉग्स को परेशान नहीं करना चाहिए. अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो वो हमें परेशान करेंगे. सो आई थिंक एलिस इज नॉट डूइंग गुड, सो आई विल मैंशन नॉट डन फॉर द एलिस. ओके, in fourth number you have to write not done. Okay, then after fifth number, Naresh enjoys harassing the cage monkeys in the zoo. Now what Naresh is doing, नरेश को जो केज मंकी, जू में जो पिंजरे में बंद मंकीज है उन्हें परेशान करना में मज़ा आता है. वो मंकीज को बहुत ज़्यादा परेशान करता है जो मंकीज पिंजरे में हैं जू में. सो आई थिंक इट्स नॉट गुड.
Naresh is also not doing good thing. So I will also write not done for the Naresh. Okay. So you have to write in fifth number not done. Okay. Sixth number, on finding a baby sparrow in the nest, Arzu protect the nest from a kid. Now here what Arzu is doing, on finding a baby sparrow in the nest, एक nest में उसे baby sparrow मिलती है, तो वो क्या करती है आरजू प्रोटेक्ट द नेस्ट फ्रॉम द कैट। आरजू किससे प्रोटेक्ट करती है, जो नेस्ट है जिसके अंदर बेबी स्पेरो है उसे आरजू प्रोटेक्ट करती है कैट से, ठीक है, ताकि कैट उस पेड़ को न खाए, ठीक है। सो आई थिंक आरजू इज डूइंग गुड वर्क, सो आई विल मेंशन वेल डन फॉर आरजू। ओके, सो हियर वी हैव एक्टिविटी 1। नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स सी एक्टिविटी 2। In activity 2, imagine that you have a puppy in your street. What will you do and what will you not allow your friends to do? Fill in the blanks. Okay. So in activity 2, imagine, you have to imagine you have a puppy in your street. आपकी जो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ street में एक puppy है. So what will you do and what will you not do? मतलब आप क्या करोगे उस पपी के लिए और क्या नहीं करने दोगे दूसरे को, आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, वो आपको इन ब्लैंक्स में लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन, द एग्जाम्पल इज गिवन टू यू। आई विल ब्रिंग मिल्क फॉर द पपी। आप क्या करोगे, आई विल ब्रिंग द मिल्क फॉर पपी, मैं पपी के लिए मिल्क लेकर आऊँगा। आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू डिस्टर्ब द पपी व्हेन इट्स मदर इज फीडिंग इट। और मैं अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा कि वो पपीज़ को डिस्टर्ब करे जब उसकी मदर उसे फीडिंग कर रही हो, ठीक है, मिल्क पिला रही हो, ठीक है। देन आफ्टर इन 2 blanks यू हैव टू मेंशन अनदर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अभी दूसरी 2 blanks में आपको सिमिलर काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स बताने हैं। सो इफ आई वॉन्ट्स टू राइट देन आई कैन राइट इन फर्स्ट वन, आई विल प्ले विद द पपी। सो मैं पपी के साथ खेलूँगा। आई विल नॉट, इन सेकेंड वन, विल नॉट अलाउ में, आई विल नॉट अलाउ अदर्स टू टीज और हैरेस द पपी। मैं दूसरों को पपी को चिढ़ाने नहीं दूंगा या उसे परेशान नहीं करने दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन नेक्स्ट यू कैन राइट, आई विल बिल्ड अ स्मॉल हाउस फॉर द पपी। तो मैं एक स्मॉल हाउस बनाऊंगा पपी के लिए जिसमें पपी अच्छे से रह सके, ठीक है। एंड व्हाट विल नॉट अलाउ टू अदर्स, आई विल नॉट अलाउ द अदर्स टू गिव एनी फूड दैट इज हार्मफुल टू द पपी। ओके, नाउ आई विल नॉट अलाउ माई फ्रेंड्स एंड अदर्स टू गिव सम काइंड ऑफ फूड दैट इज हार्मफुल टू पपी। जो पपी खाकर बीमार हो जाए ऐसा फूड मैं किसी को भी पपी को खिलाने नहीं दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, हियर वी एंड द एक्टिविटी 2। नाउ टर्न द पेज। सो एक्टिविटी 3, वी हैव स्टडीड द एक्टिविटी 3 थ्रू पार्ट 1 वीडियो। सो you have to turn the page and come on the page number 12. There is activity 4 is given to you. So dear student, I hope on the basis of my part 1 video, that is activity 3, I hope you are able to easily answer the following question that is given to you in activity 4. So in activity 4, first question is given to you, where did Sonu first see the yellow butterfly? सोनू ने पहली बार येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा था? ओके, सो सोनू फर्स्ट सो द बटरफ्लाई इन हिज गार्डन। यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ द सेकेंड वन, नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। नाउ सोनू जब बटरफ्लाई को कॉट कर रहा था यानी पकड़ रहा था तो बटरफ्लाई ने कौन कौन सी प्लेस पे रेस्टेड मतलब रेस्ट किया। ओके, सो यू कैन इजीली आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रेड रोज पे गई, देन ऑन फ्लोटिंग लीफ, उसके बाद फ्लोटिंग लीफ पे गई, एंड देन ऑन अ फ्लावर ऑफ अ चंपक ट्री, जो फ्लावर था चंपक ट्री का उस पे भी उसने रेस्ट किया था। इट्स वेरी सिंपल। नाउ द थर्ड वन, वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। नाउ सोनू बटरफ्लाई को क्यों चेज कर रहा था, उसका पीछा क्यों कर रहा था?
सो बिकॉज ही वॉन्टेड टू कैच इट, क्योंकि सोनू उसे कैच यानी पकड़ना चाह रहा था. फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई. फोर्थ वन, फ्रॉम वेयर डिड सोनू कैच द बटरफ्लाई. सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ा. ठीक है. सो फाइनली एज वी नो, सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ा था. सोनू कॉट द बटरफ्लाई फ्रॉम अ स्पाइडर्स वेब. सोनू ने कहाँ से पकड़ा था. सोनू कॉट द बटरफ्लाई फ्रॉम अ स्पाइडर वेब. यू कैन इजीली राइट द आंसर. ओके. नाउ द फिफ्थ वन, वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. अभी सोनू ने फाइनली, कब से वो बटरफ्लाई को पकड़ रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट में जब उसके हाथ में बटरफ्लाई आ गई थी, सोनू ने बटरफ्लाई को जाने दिया था. वाई. बिकॉज इट लुक सैड इन सोनूज हैंड. क्योंकि बटरफ्लाई क्या कर रही थी, सोनू के हैंड में सैड लग रही थी. सो सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी. सोनू उसे हैप्पी देखना चाहता था. सो दैट्स वाई सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. Very simple question answers given to you. So dear student, you have to write the activity 4 in your notebook. Okay. Now let's see B1 in activity 4. That is, here are some expressions. Match the correct options. कुछ expressions आपको दिए. You have to match the expression with the correct option. It sailed from flower to flower. So who sailed from flower to flower? एक फूल से दूसरे फूल कौन जा रहा था. So it was butterfly. Okay. Next one, second number, there was a white lotus in it. और white lotus कहाँ था. So the white lotus in the pond. तो second number में आप pond पर मैच करोगे. He walked slowly and silently to catch the butterfly. तो who's going slowly and silently to catch the butterfly? धीरे से चुपके से कौन पकड़ने जा रहा था बटरफ्लाई को. That was सोनू. Then you have to match it on सोनू. Okay. And fourth one, that is, it was hungry. तो who is hungry? Then the spider was very hungry. So in first one, it sailed from flower to flower. That is butterfly. You can match here. There was a white lotus in it. तो कहाँ था. That was in pond. Okay. So he walked slowly and silently to catch the butterfly. That was Sonu. So it was hungry. Who is hungry? Spider was hungry. You can match like this in your textbook. So dear students, here we end activity 4. So dear student, let's see activity 5. Study these sentences. Off flew the butterfly. In other words, the butterfly flew off. So here one sentence is given to you. Off flew the butterfly. एक सेंटेंस आपको दिया गया है. Off flew the butterfly. आपको इस सेंटेंस को इस तरह से लिखना है कि उसका मीनिंग चेंज ना हो, सेम मीनिंग रहे और सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाए. ओके. सो ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई का उसने अनदर वे से किस तरह से लिखा है. इन अदर वर्ड्स, द बटरफ्लाई फ्लू ऑफ. दोनों का मीनिंग सेम है. ओके. देयर इज वन मोर सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल आपको दिया है. अप ही क्लाइम. तो ही क्लाइम अप. वी कैन राइट इन अनदर वे. सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू गिव 3 एग्जाम्पल्स yourself in the blank space. So you can write. If I want to write, then I can write, near the garden was a pond. A pond was near the garden. Both are similar. In second one, back it flew. In second one, it flew back. Okay. In third one, in the pond was a white lotus. So I can write in another way, a white lotus was in the pond. Okay dear student, here we end the activity 5. Now let's see next activity, that is activity 6. Okay, in activity 6 we have already studied the process of life cycle of a butterfly through the animation video which I have sent to you. So how the butterfly life cycle goes. First of all, in first stage, egg on a leaf. बटरफ्लाई के एग्स होते लीफ के ऊपर. ठीक है. सेकेंड स्टेज में वो कैटरपिलर बनती है. ठीक है. इन थर्ड स्टेज वो एक क्रिसिलिस में कन्वर्ट होती है और एक पुपा बन जाती है. ठीक है.
इन फोर्थ स्टेज वो फाइनली एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, सो वी हैव स्टडीड दैट ऑलरेडी, दैट्स वाई मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so let's see activity 7. In that one poem is given to you, so you have to sing this poem with me, okay? And we are going to use the tone in this poem, that is row 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 your boat. So let's sing the poem together, okay? Hatch little egg, I'm so very small, teeny tiny caterpillar, you can't see me at all. Growl, caterpillar growl, munching on a leaf, growling, munching, eat and eat and eat. Form, chrysalis, I am a different shape, hanging by a silken thread until I can escape. Rest, chrysalis, dreaming of the sky. Now at last my time has come to be a butterfly. Stretch, pretty wings, it's a special day. Soon they will be strong enough for me to fly away. Fly, butterfly, fly from flower to tree. Find a place to lay my eggs so they can grow like me. Okay, very good. So you have sing the poem very well. So this poem is written by Susie Gasley. Okay, nice poem, na? Okay, dear student, let's see activity 8. For that you have to turn the page. Come on the page number 14. On that, in activity 8, look at this picture. Talk to your friend using the words given in the bracket to describe the butterflies. So now what you have to do, you have to look at this picture. ये दो pictures जो दिए बटरफ्लाई की आपको उसे देखना है. Then after seeing this picture, ये pictures देखने के बाद जो bracket में आपको words दिए गए हैं, big, small, colorful, pretty, delicate, sports, wings, flying, sailing, ये सारे वर्ड्स का यूज़ करके आपको बटरफ्लाई का डिस्क्रिप्शन की बातें आपके फ्रेंड के साथ करना है. एंड इवन यू हैव टू राइट इन द स्पेस गिवन बिलो टू यू. ओके, सो इफ आई वॉन्ट्स टू राइट देन आई कैन राइट मैनी sentences just like there are two butterflies in this pictures. One butterfly is big and other one is small. They are colorful. Next one, they are colorful. They look very pretty. Okay, वो बहुत सुंदर दिखती है. They have delicate wings. उनके पास delicate wings होते हैं. They are red, yellow and white spots on their wings. उनके जो wings होते हैं उस पे red, yellow, white color के spots होते हैं. Okay, and then after the butterflies enjoy flying from flower to flower. Okay, then I can write the butterfly enjoyed. What the butterfly enjoyed? Sailing from flower to flower. Okay, so dear student, you have to write yourself in your textbook. Okay, next one, let's see the next activity, that is activity 9. In that फर्स्ट वन ए, बटरफ्लाइज आर यूनिक इंसेक्ट्स. बटरफ्लाई एक यूनिक इंसेक्ट होती है. दे हैव 4 विंग्स एंड 6 लेग्स. उनके 4 विंग्स होते हैं और 6 लेग्स होती है. दे कैन फ्लाई थ्रू द एयर और रेस्ट ऑन अ फ्लावर. वो कहाँ पर फ्लाई करती है? एयर यानी हवा में फ्लाई करती है. और कहाँ पर रेस्ट करती है? फ्लावर्स पर. डिस्क्राइब ए बटरफ्लाई यू हैव सीन. आपने जो बटरफ्लाई देखी है उसे आपको डिस्क्राइब करना है. हियर आर सम वर्ड्स यू माइट यूज. आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए, स्मॉल, डेलिकेट, फ्रेगल, कलरफुल, फ्लाइंग. ये सारे वर्ड्स को आप यूज करके बटरफ्लाई को डिस्क्राइब कर सकते हो. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सिमिलरली आपको कुछ वर्ड्स और दिए हैं ब्रैकेट में जिसका यूज करके आपको क्या करना है? यू हैव टू ऑब्जर्व हाउ इट फ्लाइज. बटरफ्लाई कैसे फ्लाई करती है वो ऑब्जर्व करना है. एंड ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट यू सी. और आपको डिस्क्राइब करना है इन वर्ड्स के हेल्प के थ्रू
कि वो किस तरह से फ्लाई कर रही है, ठीक है, और आपने क्या देखा है. नाउ नेक्स्ट वन ऑन द पेज नंबर 15 similar kind of thing is given to you. In that you have to what you have to do, use the brackets word. जो आपको बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करके आपको क्या करना है. When you see a butterfly, try to describe its wings. अगर आपने एक बटरफ्लाई को देखा है तो आपको उसके विंग्स का डिस्क्रिप्शन करना है इन सारे बॉक्सेस में जो वर्ड्स है उसकी हेल्प लेके. ओके, नाउ नेक्स्ट सी द B1 of activity number 9, that is read the following story carefully. Select the appropriate word from the box to fill in the blanks. Now you have to read the story carefully and some words are missing in this story which you have given in the bracket, that is fun, sent, invited, whatever, year, be, notice. So dear student, whenever you are reading the story, then you have to fill the appropriate word in the missing blanks. Okay, so let's start. Why are there ants everywhere? So the story is why are there ants everywhere, मतलब हर जगह ants क्यों होती है, जो चींटियाँ होती है वो क्यों होती है. So let's read the story. One king lion held a party. He blank everyone to the party. So any guesses? फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ सकता है. जब किंग लायन ने एक पार्टी हेल्ड की, मतलब उसने एक पार्टी दी, तो ही ब्लैंक एवरीवन टू द पार्टी. उसने क्या किया, सभी को पार्टी में. यस, वेरी गुड. In first blank you have to write invited. Okay, but when the little ant arrived, the other animals made blank of her. लेकिन जब little ant पार्टी में आती है तो सब लोग क्या करते हैं. Yes, any guesses? Yes, हाँ, yes. You have to write in second blank the fun. Okay, then after, but the next morning the lion awoke with a pain in his ear. Now but the next morning what's going on, क्या हुआ. लायन जैसे ही उठता है उसके ईयर में पेन यानी दर्द हो रहा होता है. All the other animals tried to reach whatever it was in the lion's ear. सारे एनिमल्स पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लायन के ईयर में क्या है. But the lion blank that the ant wasn't there. लेकिन सडनली लायन क्या नोटिस करता है, सभी लोग यहाँ पर है और सब पता लगा रहे कि लायन के ईयर में क्या है. बट हु इज एब्सेंट, कौन नहीं था वहाँ पर. ant wasn't there, ant वहाँ पर नहीं थी. सो द लायन ब्लैंक, बट द लायन ब्लैंक द ant wasn't there. क्या किया लायन ने. सो उस ब्लैंक में क्या आएगा, थर्ड वन ब्लैंक में. लायन नोटिस्ड, लायन ने नोटिस किया कि आंट वहाँ नहीं है. सो द लायन ब्लैंक द रैबिट टू आस्क द आंट टू कम एंड हेल्प हर. सो लायन ने क्या किया, ब्लैंक द रैबिट यानी रैबिट को सेंड किया यानी भेजा. फोर्थ ब्लैंक में सेंड आएगा. क्या करने के लिए भेजा, आंट को बुलाने के लिए ताकि आंट उसकी आकर हेल्प करे. द आंट एग्रीड एंड क्लाइम्ड इनटू द लायंस ब्लैंक. सो लायन जो आंट थी वो एग्री हो गई लायन की हेल्प करने के लिए, और वो कहाँ गई, into the ear of lions to remove a worm that was beating the eardrums. क्या करने गई वो, उसने क्लाइम किया यानी वो लायन के ईयर में गई आंट. क्या करने के लिए, टू रिमूव अ वर्म, जो वर्म लायन के ईयर में चला गया था और वहाँ जाकर क्या कर रहा था, बीटिंग हिज ईयर ड्रम, लायन के ईयर ड्रम्स को बजा रहा था. ठीक है. The lion offered that ant blank she wanted, and the ant said that she wanted her children to blank able to live everywhere, and that is how things are to this day. Last वाले blanks में आएगा B, and last second blanks में आएगा whatever. Okay. So dear student, here we end the chapter number 2, that is unit 2. Okay, in activity 10 you have to nothing to do, you have to express your feeling. If you were a butterfly, अगर आप एक butterfly होते, you have to imagine कि you were a butterfly, आप एक butterfly हो
तो आपको कैसा फील होता अगर आपको कोई पकड़ लेता? तो a boy who has caught you, आपको अगर किसी बॉय ने पकड़ लिया हो तो what was your feelings? Okay, so here we end the unit 2. I hope dear students my explanation is enough to your studies. So keep watching and stay home, stay safe. Thank you.